Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our academy, AB Zeta Academy. It's our first lecture of the session of PPSC Mathematics BPS 17 preparation. That preparation is online. First of all, I would like to introduce myself. Myself is Anila. I have been serving at Government College University, Faisalabad, and I am also a PhD scholar. My initial degrees and their academic marks have been among top position holders of BICE Gujranwala, Board of Intermediate and Secondary Education Gujranwala. At that time, I secured the top position, on behalf of which Government of the Punjab sponsored a foreign tour of Turkey, Germany and UK, and that was fully funded, awarded by the Government of the Punjab at that time. Later on, I also stood among top position holders in intermediate and also in MSc Part 1. I have been selected as SSC Mathematics through educators in 2018, but I could not join for somehow that was 16 scale, and I was at that time interested but could not join due to my MPhil. Later on, I got a job as MTO Management Training Officer at Style Textile Industry. That I also quitted as I want to be linked with the education sector. Now I have been selected as lecturer mathematics in 2020 recently. So I decided to deliver my concepts, my knowledge to all of you. Firstly, I would like to show you some of the papers. I appeared just in 3 papers of lecturer mathematics through PPSC. Fortunately, by the grace of Allah, I cleared all of these 3. Just for your knowledge, I am showing here. सबसे पहले जो हमारे पास पेपर आता है वो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ओके, यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास, ये एक लिस्ट है, और अगर आप ये देखें तो ये कौन सा है, 2020 का. ठीक है, यहाँ पे ये फाइनल रिकमेंडेशंस हैं. तो इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट टॉप 8 अमंग टॉप 8 कैंडिडेट्स. यहाँ पे लिस्ट देखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले मेरिट नंबर आता है, उसके साथ उसका एप्लीकेशन नंबर आता है. तो यहाँ पे ये फर्स्ट मेरिट नंबर है, साथ में एप्लीकेशन है. नेम ऑफ द कैंडिडेट विद फादर्स नेम, तो ये कैंडिडेट नेम आ जाता है, एंड देन डोमिसाइल. इसमें आई सिक्योर्ड 8 merit number. Here is my name and here is my domicile location. So alhamdulillah, in 2020 PPSC lecturer mathematics, I am among the recommended students. Now we move back towards another PPSC lecturer mathematics test that I attempted. That is a written test of lecturer mathematics. Here is the written test result for the post of lecturer mathematics 2019. तो सबसे पहले जो अभी आपने देखा वो 2020 का था, ये 2019 का है. बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि इस टाइम पे तो सीट्स नहीं आई थी. बेसिकली ये स्पेशल एक इंस्टीट्यूट के लिए आई थी, तो जस्ट 1 सीट थी इसमें, और ये 2019 का है. ये उसके रिटन टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं.
यहाँ पे देखें ये फॉर 1 पोस्ट था, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन कोटा ऑफ लेक्चरर मैथमेटिक्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इन द माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट। तो ये थी हमारे पास, ठीक है। अब ये इसमें जो है ये फर्स्ट नंबर पे हूँ मैं अनीला, ठीक है। ये जस्ट आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए है, नथिंग एल्स, ताकि आपको पता हो कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपना टाइम दे रहे हैं, वहाँ पे आपको जेन्युइन सारा कुछ मिले। नेक्स्ट वन इज़ 2017। यहाँ पे आप देखें कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये 2017 की लिस्ट है लेक्चरर मैथमेटिक्स की, साथ में कोड भी मेंशन है। तो ये भी क्या है, रिटन टेस्ट रिजल्ट्स हैं, रिटन टेस्ट रिजल्ट्स फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर मैथमेटिक्स फीमेल 2017। तो 2017 में भी आई थी, एट दैट टाइम आई वाज डूइंग माय एमफिल। सो इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट। मैंने जो टेस्ट अटेम्प्ट किए थे वो जस्ट 3 किए थे। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई क्वालिफाइड दिस 3 रिटन टेस्ट्स and now I have been appointed as a lecturer mathematics through PPSC recently. I am also a PhD scholar. I am doing my PhD at the same times. So now we move back towards the course contents of AB Zeta Academy. That's a paid course with a very reasonable fee structure. AB Zeta Academy सेशन जो भी हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, प्लान ऑफ लेक्चर्स हैं हमारे पास। फर्स्टली जो आज का फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं PPSC इंट्रोडक्शन है, some PPSC introduction, then we are going to start algebra, group theory, then cosets, conjugacy classes and the tricks that will describe completely all of these homomorphisms, isomorphisms. Later on we will discuss ring theory, fields, according to MCQs, according to PPSC scheme, according to PPSC syllabus. Next one would be the intermediate part 1, half book for one lecture, half book for another lecture. That would be beneficial. ये कैसे हमें फ़ायदा देगी, क्योंकि हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ा, आपका अभी न्यू एक्सप्लोयर है, तो हम दरमियान में ये थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, गैप लगाएंगे, और उसमें भी हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, हम साथ साथ जो है वो इंटरमीडिएट बुक फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये हमारी इंटरमीडिएट बुक्स एंड होगी, हम क्या स्टार्ट करेंगे, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें बहुत से स्टेटमेंट्स हैं, थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स, वो सारी इन्वॉल्व होती हैं। तो हम करेंगे टोपोलॉजी करेंगे, और फिर बेसिस, सब बेसिस, जिस टाइप के जिन जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं जस्ट वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हम एक अनदर ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे। अभी भी जो 2020 का पेपर था उसमें भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री इन्वॉल्व था, तो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे एक सेकंड ब्रेक लेंगे, और इसके जिन टॉपिक्स में से पॉसिबल MCQs आ सकते हैं वो वाले हम MCQs कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे हम MCQs कवर करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस, और इसी तरह से उसमें लिमिट्स आ जाएंगी, सीक्वेंसेस आ जाएंगी, कन्वर्जेंस टेस्ट्स आ जाएंगे, डेरिवेटिव एप्लीकेशंस आ जाएंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर टेक्निक्स। फिर इसके बाद हम अनदर ब्रेक लगाएंगे यहाँ पे इंटरमीडिएट पार्ट 2, बुक हाफ फॉर वन लेक्चर, हाफ फॉर अनदर लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इससे जो क्वेश्चंस आने की वेटेज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम करेंगे, इसमें CR इक्वेशन करेंगे, एनालिटिक फंक्शंस करेंगे, हार्मोनिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, और जो जो टॉपिक्स कंटूर इंटीग्रेशन करेंगे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे हम उनको कवर करेंगे एज़ पर PPSC पॉलिसी।
वेक्टर्स टेंसर की बुक जब हम स्टार्ट करेंगे तो वेक्टर्स के स्टार्टिंग चैप्टर्स कवर करेंगे, देन टेंसर्स, फिर मैकेनिक्स एंड रेडियस ऑफ जायरेशन, इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आता है। देन अगर आप पीपीएससी रिसेंट पेपर देखें, अभी हम उसको एक पेपर को देखेंगे भी, वैसे ही ओवरव्यू लेंगे। सेंट्रॉइड के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस आते हैं, इवन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के भी आते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के भी आते हैं। तो ये सारे जो है वो हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। एट द एंड जो हम कवर करेंगे चीज़ वो है बीएससी मैथमेटिकल मेथड बुक बाय एसएम यूसुफ और देन कैलकुलस बुक बाय एसएम यूसुफ। तो ये हमारा ऑनलाइन एक सेशन चलेगा। अगर आपको फर्दर कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, AB ज़ीटा एकेडमी के नेम से। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर इसको आप 92 के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 92 आ जाएगा, तो आप कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स इस पर पूछ सकते हैं। ओके, ये तो था हमारा क्विक ओवरव्यू कि हम किस तरह से मूव करेंगे। अब हम आ जाते हैं एक सैम्पल पेपर की तरफ, जिसको हम जस्ट एक नज़र देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये एक प्लान्ड स्ट्रक्चर है जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो प्रिपेयर किया है आपके लिए, ताकि हमें कोई इशू ना हो। हम विज़िट करते हैं 17 के पेपर को। ठीक है, 17 के पेपर को देख लें, कोई भी पेपर देख लें। लेक्चरर मैथमेटिक्स 17, ये डिफरेंट लोग जो कि अटेम्प्ट करके आए होते हैं, या वैसे तो वो कंपाइल कर लेते हैं, एट टाइम्स हमें वो पेपर भी मिल जाता है, लेकिन ये किसी की तरफ से कंपाइल्ड किया हुआ पेपर है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है, नेक्स्ट वन में वेक्टर इन्वॉल्व है, फिर ये वेक्टर इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद हमारे पास अगेन एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये देखें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो मैथमेटिकल मेथड में कवर हो जाएंगी, ओडीज भी, पीडीज भी, और जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस में से भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो हमारा कैलकुलस में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन वेक्टर, इट मीन्स कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वेक्टर एनालिसिस के हैं, वेक्टर से आए हुए हैं, और देन मैकेनिक्स यहाँ से इन्वॉल्व हो जाता है। अभी जिस तरह से हमने बात की सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और इसी तरह से यहाँ पे हमने फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ सकते हैं। अगेन सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वो चीज़ें हैं जो हमें कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं, और अगर आप वन डे बिफोर एग्ज़ाम करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, उससे रिलेटेड आ गया। फिर ये फ्रिक्शन से रिलेटेड। अब आप देखेंगे कि ये सारी वो टिपिकल बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी मैकेनिक्स बुक में से है, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम या तो इग्नोर कर देते हैं, या एंड पे रखा होता है वो स्किप हो जाता है, तो सम टाइम उसमें से पोर्शन ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे टोपोलॉजी क्या होती है, इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, टोपोलॉजिकल स्पेस से रिलेटेड अगेन। ठीक है, ये हमारे पास टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। लिमिट पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, टोपोलॉजी होती है नहीं होती, सब बेस होती है नहीं होती, ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। कुछ ये हमारे पास इंटरमीडिएट से क्वेश्चंस आ जाएंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एंड उससे रिलेटेड, और यहाँ पे ये लिमिट के क्वेश्चंस अगेन बीएससी बुक से हैं। अब ये देखें इस टाइप के इंटीग्रेशन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें सरफेस इंटेग्रल कैलकुलेट करना आ सकता है, कि आपने सरफेस इंटेग्रल कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वी। यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स, इसको हम अगेन लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई एंड सी, तो ये कैलकुलेट करना आ जाता है। अब देखिए पीपीएससी में जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स स्टैंड्स फॉर 1.5 आवर्स, और जबकि आपके पास एमसीक्यूज़ जो हैं वो कितने होंगे, 100 एमसीक्यूज़ होंगे। 100 एमसीक्यूज़ आपने इन 90 मिनट्स में करने हैं। इट मीन्स एक एमसीक्यू के लिए आपके पास लेस देन 1 मिनट है।
तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपका कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा, आपको काफ़ी गेस लगाने पड़ेंगे। और पीपीएससी में आप गेस नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं लगा सकते, लेकिन आप मेजॉरिटी टाइम्स जो है वो उसको स्किप करना पड़ता है। तो आपको जिससे रिलेटेड आपको 95% श्योर है वो तो आप गेस कर सकते हैं। आप देखें, इसकी तो एक वैल्यू आएगी, जब तक आप कंप्लीट इसको नहीं करेंगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ट्रिक्स करेंगे, कि हम कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए, और इसी से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेटिस रेक्टम कैलकुलेट करना। इसकी भी हम ट्रिक्स करेंगे। हमारा जो पीपीएससी जो होता है वो बेसिकली ट्रिक्स बेस्ड होता है। अगर आपको ट्रिक्स आती हैं चीज़ों की तो आप उसको कवर कर जाते हैं, विद इन टाइम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती तो आपके 5 से 10 मिनट अगर एक एमसीक्यू पे वेस्ट हो गए हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो लूज़ हो जाती है, अपसेट भी हो जाती है। अब देखेंगे अगेन सेंटर ऑफ दिस सफियर, इस सफियर का सेंटर कैलकुलेट करना, इसको रीअरेंज करना। तो पीपीएससी में सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पोर्शन की बात करें तो ज़्यादा होते हैं, जिनको अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप उनको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन बीएससी में से है नेक्स्ट अगेन हमारे पास एसिम्प्टोट्स का क्वेश्चन आ जाता है। एसिम्प्टोट इज़ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स, क्योंकि इसमें लिमिट ही हमारे पास होती है। इसकी भी हम ट्रिक्स करेंगे। देन एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, और ये देखेंगे टिपिकल हमारे पास बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम बीएससी को एक ओवरव्यू भी करें लेकिन डिटेल में नहीं करें तो तब भी ये अपसेट हो जाता है हमारा पेपर। बीएससी मेजॉरिटी टाइम्स या तो हम इंटर को फोकस कर देते हैं ज़्यादा या फिर एमएससी को कर देते हैं, तो बीएससी जो है वो कहीं ना कहीं लैक में रहती है। ठीक है, बीएससी जो है वो हमारी लैक में चली जाती है क्योंकि हम बाकी चीज़ों को फोकस कर देते हैं। तो हमने बीएससी को भी इक्वली फोकस करना है। इसकी रीज़न मैं आपको एंड पे बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन, साइक्लिक ग्रुप से, और एक ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स होती हैं डिफरेंट थ्योरम्स की, वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के भी आपको वेज आने चाहिए। और इसी तरह से ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये भी हमारे पास बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ टू इनफाइनाइट सेट्स हमारे पास क्या होगा। देन हमारे पास स्टार्ट हो जाता है रियल एनालिसिस। ठीक है, ये हमारे पास रियल एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप 80 क्वेश्चन देखें तो ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन 81 से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, जनरल नॉलेज स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स जो पीपीएससी में जो पेपर है उसकी जो रेशो होती है वो होती है 80+20। अब 80 जो है वो सब्जेक्ट में से होते हैं, 80 जो है वो किस में से होते हैं, वो मैथ का पोर्शन होता है, और ये जो 20 होते हैं ये हमारे पास जनरल नॉलेज के होते हैं। ठीक है, अब ये जो 80 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो कहाँ से आ सकता है, वो आ सकता है इंटरमीडिएट टू एमएससी लेवल से आ सकता है। ठीक है, ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है ये कहाँ से आएगा, जनरल नॉलेज में इस्लामिक स्टडीज़ हो सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स हो सकता है, पाकिस्तान हिस्ट्री हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड हो सकते हैं इंग्लिश हो सकती है। उसके बाद इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ हो सकती है। उसके बाद इसमें अनदर कंट्रीज़ की हिस्ट्री हो सकती है, इस्लामिक हिस्ट्री हो सकती है, साइंस हो सकती है, उर्दू हो सकती है, 1 से 2 एमसीक्यूज़ होते हैं, और कंप्यूटर साइंस हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है। अब कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्ट कीज़ अक्सर पूछते हैं या एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें उर्दू से रिलेटेड कोई भी शेर आपसे पूछा जा सकता है ये किस राइटर का है, और कोई भी आपको मुहावरा दे के पूछा जा सकता है इसकी करेक्ट फॉर्म बता दें। इंग्लिश में कोई भी आपको आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा एक्टिवाइज पैसिवाइज आ सकते हैं। इंग्लिश में जो है वो एक्टिवाइज पैसिवाइज आ सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन आ सकती है। इस्लामिक हिस्ट्रीज़ में आपसे अंबिया कराम से रिलेटेड पूछा जा सकता है, कुरान पाक से रिलेटेड पूछा जा सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो हम जो अपने सेशन में कवर करेंगे वो मैथमेटिक्स पोर्शन है। ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है ये आपने साथ साथ कैरी रखना है, ठीक है। आप इंग्लिश को डेली बेसिस पे करें, आप हिस्ट्री को करें, आप उर्दू को करेंगे, वो चीज़ें हैं जो अगर आप एक दिन में करेंगे तो ये सारी मिक्स हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि इन 20 मार्क्स को मैनेज करें। 80 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स पोर्शन है और इसको हम प्रॉपरली इसको कवर करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाता है द फेमस स्पीच विच हैड द रिफ्रेन आई हैव अ ड्रीम वाज डिलीवर्ड बाय। देखें, अब ये आपकी किसी बुक में था, बीएससी बुक में था एक आई हैव अ ड्रीम। तो इसके आपने बताना है कि ये किसने लिखी थी। फिर उसके बाद एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे किसने बनाया था। फिर उसके बाद व्हेन वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन पाकिस्तान, दैट इज़ 1951। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। क्रिकेट से रिलेटेड आ सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ सकता है, कोविड-19 चल रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन, किसी से भी रिलेटेड आ सकता है। अब देखें, टू फाइट टूथ एंड नेल मीन्स, और ये हमारे पास इंग्लिश में जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं या जो फ्रेजेस इडियम्स होते हैं उससे रिलेटेड आ सकता है। व्हाट इज़ द एंटीनम ऑफ दिस, और फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और इसमें से कौन से स्पेलिंग अच्छे हैं। अब देखें, पीपीएससी को पता चल गया है कि आप स्पेलिंग्स पे फोकस नहीं कर रहे, तो उन्होंने पेपर में देना शुरू कर दिया है। अब देखें, लास्ट में हमारे पास बिनतुल उनब का मफहूम कीजिए, तो ये होता है बिनतुल उनब, ठीक है, अंगूर की बेटी, बिनत बेटी उनब अंगूर। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा एक क्विक ओवरव्यू ऑफ द पेपर एंड ऑफ द सब्जेक्ट पोर्शन एंड अनदर पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि हाउ टू अटेम्प्ट इन पीपीएससी। पीपीएससी स्टैंड किसके लिए करता है? पीपीएससी स्टैंड्स फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये हमारे पास इसके लिए स्टैंड करता है। अब पीपीएससी जो है वो यूजुअली जो अभी रिसेंट ट्रेंड है वो 2 to 3 ईयर्स के इन बिटवीन आता है। ये फर्स्ट टाइम है, आप लोग लकी हैं कि अभी पीपीएससी ने बहुत जल्दी नेक्स्ट जॉब्स अनाउंस कर दी हैं। ख़ासतौर पे फीमेल्स की जो सीट्स हैं वो 106 हैं, तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेल्स की बात करें तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, लेकिन सीट्स थोड़ी सी कम है, 25। अब पीपीएससी किस तरह से आपको बुलाती है, अगर आपकी एक सीट है, जिस तरह अभी मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी, तो एक सीट के अपोजिट जो है वो फाइव स्टूडेंट्स को कॉल करती है, 5 कैंडिडेट्स को बुलाती है जिनका टेस्ट क्लियर हुआ होता है। अगर टेस्ट ही 2 लोगों का क्लियर हो तो वो जस्ट 2 को कॉल करती है। अदरवाइज़ एक सीट के करस्पॉन्डिंग 5 स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें से वो एक सिलेक्ट करती है। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। अब देखें, अगर 106 सीट्स हैं तो इसमें सिलेक्शन किस तरह से पॉसिबल है। 106 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आलमोस्ट 530 के राउंड अबाउट सीट्स होंगे, 530 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छा परफॉर्म करें अपने टेस्ट में, अपने इंटरव्यू में। इसी तरह मेल्स की बात करें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट इतने कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो पीपीएससी का जो फाइनल मेरिट है वो किस तरह से बनता है। पीपीएससी का जो फाइनल मेरिट है वो कैसे बनता है। पीपीएससी में जो है वो टोटल होते हैं 100 मार्क्स टेस्ट के। 100 मार्क्स किसके होते हैं? टेस्ट के, रिटन टेस्ट के, प्लस होते हैं 100 मार्क्स इंटरव्यू के, और देन होते हैं 40 मार्क्स आपकी प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस के।
एकेडमिक मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये टेस्ट मार्क्स हैं, ये टेस्ट मार्क्स हैं, ये इंटरव्यू मार्क्स हैं और ये आपके एकेडमिक मार्क्स हैं। ये होगी, इस तरह से इसकी होती है डिवीजन। अब ये जो 100 टेक्स्ट मार्क्स होते हैं ये एज इट इज़ फाइनल इंटरव्यू में काउंट नहीं होते। ये किस तरह से काउंट होते हैं? 100/2 मीन्स ये टोटल 50 मार्क्स कंसिडर होते हैं आपके, आउट ऑफ 50 मार्क्स लगते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपने इसमें 48 स्कोर किया है तो ये 2 पे डिवाइड होंगे तो ये हो जाएगा 24, तो ये आपके 24 लगेंगे आउट ऑफ 50। अब ये जो इंटरव्यू मार्क्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये एज इट इज़ 100 के 100 आपके फाइनल में काउंट होते हैं। और ये एकेडमिक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एज इट इज़ 40 काउंट होते हैं। अब ये 40 मार्क्स आते किन लोगों के हैं? हम जैसे लोग होते हैं जिनके मार्क्स 40 आते हैं। तो इसके लिए जो है रूल क्या होता है कि अगर आपके सारे सब्जेक्ट में 80% या उससे अबव मार्क्स हैं, 80% आर अबव, अगर मार्क्स जो हैं यहाँ पे हम साइन को चेंज कर लेते हैं। अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80% है, अगर मार्क्स क्या है 80% या उससे ज़्यादा हैं तो आपके 40 मार्क्स पूरे लगते हैं। इसमें डिवीजन होती है, मैट्रिक के 7 होते हैं, इसी तरह से इंटरमीडिएट के मार्क्स होते हैं, फिर बीएससी के होते हैं, फिर एमएससी के होते हैं। अगर आपने बीएससी एमएससी की बजाय यहाँ पे बीएस किया हुआ है तो आपके मैट्रिक के मार्क्स, फिर इंटर के मार्क्स और फिर बीएस के मार्क्स, बीएस के जो मार्क्स की परसेंटेज होती है वो थोड़ी सी कम काउंट होती है। सेमेस्टर सिस्टम में और एनुअल सिस्टम में परसेंटेज काउंट करने का क्राइटेरिया पीपीएससी का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आपके ये 40 मार्क्स आपके आ गए हैं तो इसका आपको क्या फ़ायदा होता है? एक तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। इस 40 में से अगर आपके 38 आ जाते हैं, 36 मार्क्स आ जाते हैं, 34 मार्क्स आ जाते हैं तो ये जो है ये अच्छे मार्क्स ही कंसिडर होते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे जाते हैं तो आप थोड़ा सा नेगेटिव जाता है क्योंकि बॉयज़ के मेजॉरिटी टाइम्स आलमोस्ट 36 के राउंड अबाउट या इसी तरह से आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो टेस्ट मार्क्स हैं, टेस्ट मार्क्स अच्छे लेना क्यों ज़रूरी है? अगर आपके ये वाले एकेडमिक मार्क्स अच्छे नहीं हैं, अगर एकेडमिक मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो कोशिश करें टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि जो आपके टेस्ट मार्क्स होते हैं वो भी आपकी डिपिक्शन होते हैं, वो आपको बताते हैं, आपके वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस पर्सन में कितनी कंपैटिबिलिटी है, टाइम मैनेजमेंट कितनी है, नॉलेज कितनी है, जनरल नॉलेज कितनी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज कितनी है, तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और देन आ जाते हैं इंटरव्यू। तो ये तीनों मिलके 190 आपके मार्क्स बनते हैं, तो इसमें से आपका बनता है मेरिट। अब बात आ जाती है हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग इन पीपीएससी। हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग इन पीपीएससी। यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, हाउ कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग इन अब ये देखें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि अपनी डेली लाइफ प्रैक्टिस में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो क्या होता है कि आपका एक नंबर -1 होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन जो है वो आपका रॉन्ग है तो आपका मार्क क्या होता है? -1 हो जाता है टोटल मार्क्स में से। लेकिन अगर आपका पीपीएससी में एक क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग चला जाता है तो आपका क्या होता है? यहाँ पे एक तो -1 होता है और साथ में -0.25 भी होता है। -0.25 ये ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि ये ऑब्टेन्ड मार्क्स में से होता है। ऑब्टेन्ड मार्क्स में से ये होता है, जितने मार्क्स आपके करेक्ट एमसीक्यूज़ के हैं उनमें से 0.25 हो जाता है। तो मीन्स टोटल आपका डिडक्ट होता है -1.25। ये वाला जो 0.25 डिडक्ट होता है ये ज़्यादा अलार्मिंग है क्योंकि आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स में से ये डिडक्ट हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे कि हमें तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम देखते हैं कि हमें कितने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने चाहिए। टोटल एमसीक्यूज़ है 100।
जैसे ही आप पेपर देखेंगे आपको क्या फील होगा, आपको कितने एमसीक्यूज आते होंगे। ये जिस तरह हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया, आपको आते होंगे 30 to 40 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनसे रिलेटेड आप श्योर होंगे और आपको लगेगा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। जिस तरह रिसेंटली भी कुछ लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि उन्होंने जस्ट एमसीक्यूज ही 48 अटैम्प्ट किए। अब जब आप पेपर में, जब भी आपका कॉलेज का पेपर होता है, कहीं भी पेपर होता है, जब आप ये एमसीक्यूज अटैम्प्ट करते हैं तो फिर उसका क्या होता है, इतने एमसीक्यूज तो आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो बाद में पता चलता है नहीं वो वाला उस टाइम पे मुझे एमसीक्यू सही समझ नहीं आया था, उस वर्ड पे फोकस नहीं किया था, वो वाला भी गलत हो गया, वो वाला भी गलत हो गया। एट द एंड आपके मार्क्स जो हैं वो आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम आते हैं। सेम इज़ द केस विद पीपीएससी। पीपीएससी में भी ऐसे ही होता है। तो जब आपको लगता है कि आपके 48 बिल्कुल ठीक होंगे, बाद में पता लगता है आपके मार्क्स तो आगे 38। अब इसका क्या नुकसान होता है, 38 मार्क्स आने का ये नुकसान होता है, पीपीएससी में जो मार्क्स होते हैं वो 40 मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स 40 मार्क्स हो गए पासिंग मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स जो है वो मिनिमम 40 मार्क्स हैं, ठीक है, मिनिमम 40 मार्क्स हैं। 40 मार्क्स से कम मार्क्स चले गए तो आपकी तो अटेम्प्ट वेस्ट होगी। अटेम्प्ट क्या होती है कि पीपीएससी अलाउ करता है कि आप 3 टाइम्स जो हैं वो पीपीएससी टेस्ट दे सकते हैं। 3 टाइम्स जो हैं वो आप पीपीएससी टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आप टेस्ट में या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो आपकी अटेम्प्ट वेस्ट हो जाती है। अगर आप दोनों में पास हो जाते हैं और फाइनल रिकमेंडेशन में नहीं आते फॉर सम हाउ, तो आपकी अटेम्प्ट जो है वो वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो 40 मार्क्स तो थे पासिंग मार्क्स, तो उसमें से आपका स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आपको 40 मार्क्स आए तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। 40 मार्क्स जो हैं, 40 मार्क्स जो हैं, अगर तो एक सीट है, सपोज़ अगर एक सीट है, उसके करस्पॉन्डिंग 5 कैंडिडेट्स हैं, आपके मार्क्स आ गए 40। अब जो पहला कैंडिडेट है उसके मार्क्स आ जाते हैं 52, दूसरे के आ जाते हैं 52.22, तीसरे के आ जाते हैं 52.23, ऐसे ही बाकियों के आ जाते हैं। तो जिनके ऊपर वाले 5 लोगों के जो टॉप वाले मार्क्स होंगे बस उनको बुला लेते हैं। अगर तो पासिंग मार्क्स ही मिनिमम में 40 हैं और पहले के 40, दूसरे के 42, तीसरे के ऐसे ही आते हैं, तो फिर 40 वाले भी आ जाते हैं। कहने का ब्रीफली इसका मकसद ये है कि जिन लोगों का टेस्ट क्लियर होता है, टॉप वाले ये वाले 5 लोग बुला लिए जाते हैं। सम टाइम टेस्ट मुश्किल होता है, मेरिट ही एंड ही 40 पे होता है, फिर 40 वाले भी बुला लिए जाते हैं। अब देखिए इन चीज़ों को हम कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें। अब कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे, कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऐसे होंगे जिनसे रिलेटेड आपको 90 to 95% श्योरिटी होगी कि ये हमारा ठीक है। इतने परसेंट आपको श्योरिटी होगी ना कि ये आपका बिल्कुल ठीक है, तो वो वाले एमसीक्यूज़ भी आपने क्या कर देने हैं, अटेम्प्ट कर देने हैं, अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं 80 to 90 के इन बिटवीन, 85 to 90 के इन बिटवीन, ठीक है। 85 to 90 के इन बिटवीन आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, टोटल अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यू। आपने ये वाले जो हैं ये टोटल एमसीक्यू इतने अटेम्प्ट करने हैं। इट मीन्स आप कितने एमसीक्यूज छोड़ सकते हैं, 10 से 15 एमसीक्यू आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का क्या फ़ायदा होगा, कोशिश करें वैसे लेस देन 10 करें, लेकिन अगर आप ये भी कर देते हैं तो इट्स ओके। अब स्किप करने का क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहला जो फ़ायदा होगा स्किप करने का, अब इंग्लिश भी है इसमें, इंग्लिश में आपको एंटीनम सिनोनिम वर्ड्स के आपने बिल्कुल सुने ही नहीं होंगे, तो आप उनसे रिलेटेड ये गैस नहीं कर सकते, ये वाला गैस नहीं कर सकते। जब आप उनसे रिलेटेड ये गैस ही नहीं कर सकते तो उनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब इनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपका ओवरऑल मेरिट डाउन हो जाता है। जब आप इतने एमसीक्यू छोड़ेंगे, एक तो 15 नंबर तो ये गए, ठीक है, 15 मार्क्स ये गए। अगर आप अटेम्प्ट ही 100 कर लेते हैं, उसमें से 15 गलत हो जाते हैं, तो 4 एमसीक्यू अगर रॉन्ग होते हैं तो 1 मार्क ठीक में से डिडक्ट होता है, -1 हो जाता है।
क्योंकि एक MCQ गलत होने का अगर 4 गलत होते हैं तो -1 होता है, एक MCQ गलत होने का 0.25 डिटेक्ट होता है, 2 के गलत होने का 0.5 डिटेक्ट हो गया, तो 4 गलत होते हैं तो 1 डिटेक्ट हो जाता है। अब अगर ये 4 गलत होते हैं तो -1 आपके मार्क्स में से कट जाता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स में से -1 हो जाता है। तो सपोज अगर आपके 16 गलत हो जाते हैं तो एक तो आपके ये वाले 16 अगर गलत होते हैं तो -16, तो ये हो गया -4 ऑब्टेन्ड मार्क्स में से हो जाना है आपका। तो जब -4 ऑब्टेन्ड मार्क्स में से हो जाएगा तो आप तो बहुत डाउन आ जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि ये वाले जो हैं कुछ MCQs छोड़ दिया करें। PPSC पेपर अटेम्प्ट करने का वे ही यही होता है। एक्चुअली हम पढ़ते सब कुछ हैं लेकिन हमारी स्मार्ट स्टडी नहीं होती, हमें स्मार्टली वर्क करना एट टाइम हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो स्मार्ट स्टडी करें, क्विक स्टडी करें और पेपर मैनेजमेंट को पे फोकस करें। तो इस तरह से हम जो हैं वो इसकी नेगेटिव मार्किंग को मैनेज करेंगे। और PPSC में जो है वो MPhil के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते, और इसी तरह से इसमें पोजीशन होल्डर के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते, CTI में इंक्लूड होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते। तो अगर आपकी फ़र्दर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हम थ्रू आउट बाकी प्रॉपर्ली उसको स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और बाकी पॉइंट्स भी उसमें कवर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।